नमस्कार। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का चौथा दिन है। नए जोश और उमंग के साथ इस दिन की शुरुआत होगी। नए टास्क पैराग्लाइडर्स को दिए जाएंगे। किस तरह से टास्क के साथ पैराग्लाइडिंग को ये टारगेट पूरे करने होंगे, पूरे दिन भर के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के चौथे दिन की शुरुआत हर रोज की तरह हुई। सुबह होते ही दुनिया के हर कोने से आए पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंचे। Hello, I'm Andrea Conci, I'm from Italy. It's my third time coming to Beer and it's a pleasure to take part of this really nice event. Conditions are really good, the tasks are really well set, the organizer is really good. Beer it's a lovely place to stay, to be, and it's really a calm and nice atmosphere, leaving the village, and I love to come here. For sure I will be back and I'm having a lot of fun. This is my first pre-World Cup competition, Asian Tour, and I started paragliding 3 years ago, and for me it's a great opportunity. Like, I'm kind of starting up in the competition thing, and this is my second comp. I participated in this year only, another pre-World Cup event, and so far it's great. I'm just one of the few B-class pilot in the competition. And yesterday the day 2 was great. Day 1 was little difficult for me because of the points which was on the open, but overall it was great event and great learning opportunity for me, and I am hoping to do better and do the goals every day. The competition here is quite different from the others. It's real high mountains and difficult conditions sometimes, but sometimes they are easy, so you never know. You have to think all the time, you have to be focused, you have to observe the surroundings, the weather. And the first task was quite difficult. The second one was more easy, but not easy totally, and today's task will be really difficult as was put by the organizers. I have to be focused all the time because yesterday I made some mistakes at the finish, and I have to avoid it. I have to be focused all the time. I have to look into my instruments, observe the weather and the other gliders, and really stay focused.
पैराग्लाइडिंग करते हुए मुझे 19 ईयर हो गया है और काफ़ी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ मैं। इंडिया में काफ़ी सारे करता हूँ, बट इंडिया से बाहर हम लोग नहीं जा पाते हैं, जो भी मतलब दिक्कत की वजह से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा भी इंजॉय हो रहा है। काफ़ी लोग हैं जो मतलब कई कंट्रियों से आए हुए हैं, तो उनके साथ फ्लाइंग करने में भी मज़ा आ रहा है। किस तरह से नए नए एक्सपीरियंस मिलता है हमको, वो एक्सपीरियंस भी मिलता है। नए नए पर डे हम लोग नए नए सीखते हैं। जहां उन्हें पैराग्लाइडिंग मैनेजमेंट की तरफ से सभी प्रतिभागियों को खेल के नियमों के बारे में ब्रीफ किया। जैसे ही ब्रीफिंग खत्म हुई, मौसम ने अपनी करवट बदली और शुरुआती दौर में ब्रीफिंग में हल्का बदलाव किया गया। Okay, hello everyone. Welcome to the task 3 of Asian Tour in Beer India 24. I hope all of you had some good flying yesterday. It was not perfect for exactly all of you because, as you know, the first thing that I will start today is the accident that happened yesterday. Unfortunately, we need to realize and to accept that our tracking system, due to the network quality, is not working as it should. It's nothing to do with the malfunction of the system or the quality of the system. It's simply the network. We have two big issues. Antennas are positioned in such a way when you are too high, you are frozen, we cannot see what's happening. We are too low, you're in some shade of the network, so we cannot see you again. So I'm saying this where you are still very focused, because we have to think and to realize that the key element of safety are, like in the old days, it's radio. So one pilot approached me today. He had some issue with the radio. He contacted the local organizer, so they provide another radio for him, which is more than welcome. So please be sure that you are flying on safety frequency, and please be sure that your radios are charged, because this is the trouble. We cannot have a really precise position. From time to time we have, of course, if you're in the open, if you are somewhere where we have network, it's working spotlessly, of course. But then if you are somewhere in areas that I explained, we cannot see you. So please remind what I just think about what I said. Also, play fair, basically be a decent man or woman. So when you see incident, just stop racing for a while and relay this information, because this is the most important. Few points are not as worthy as someone's injury or life. So it's very important. We are all listening. The entire team is listening. I'm going directly to the landing field. From there I can hear majority of it. But again, from time to time, pilot on the ground can relay only to the pilot in the air. And this guy can relay the message to us. So it's a standardized routine for the pilots that are here for a long time, just like in the, let's say, late 90s. So we need to go that far back in order to remember how it was. Okay, so the second thing that was brought to my attention, I believe it's the case everywhere, is the turning direction. So there are basic rules of turning direction, everybody knows them, but I will repeat them just to know in which principle we are using here. Before the start gate, it's clear, it's defined, left or right. Today is fifth, so we go to the left, it's easy. After, when you're in the free flight, when you're in transition in between turn-points, doesn't matter how high you are, the pilot that is first to turn into one direction is determining the turning direction. That pilot could be like this, 500 meters below you. If that guy is turning to the left, you 1 kilometer above, you turn to the left. This is the basic rule.
So there is no such a thing as I was far away. There is no such a thing as we were not even close. It's not such a thing. In the track looks, it's very easy to see. We see who is the first at turning point. We determine, okay, this guy turned to the left, and if you are higher, turning to the right, you will be penalized because you're not following the basic rule. It's very simple. Nothing to think, nothing to explain. Who is in front? Doesn't matter the altitude, is defining the turning direction. This is first thing. Second thing is kind of aggressive flying. One in established thermal that everybody knows, but it's a little bit difficult in the heat of the racing to follow the principles. In the thermals, it's not always correct to cut to climb better. You need to work as a team. Everybody knows that. Good pilots will find their way. But this finding their way doesn't mean superiority, doesn't mean disrespect. Everyone in this task has the same level of respect. So you need to respect this guy on E and B, high and B. It doesn't matter that you are faster. It's basically giving you an advantage. It's easier for them to go around and to do something than for them. So this is addressing especially the top pilots. Play fair with the less performing pilots and play fair with less performing wings. This is basic. I know I don't want to speak endlessly about this, just a small reminder. Okay. I confirm, so the line is 200 meters long, right? Yep. Total, yes. 100, Yes. Some instruments 200. you need to put the 200 instead of the 100. No. On mine it is like that. In some, You if should type 100. Line 100. Yeah. You should type Because- in the task 100. because it's creating a half cylinder, it should be 0.1 kilometer. Okay, before I go with the timings and everything, okay, now we are talking. So don't do it. It's unpleasant for me. It's unpleasant for the team. It's bad marketing. It's labeling you as a cheater. Don't do it. It's not so difficult. Again, few points less are less painful than zero for the day. And not to mention danger of collision and all the mess that is going with cloud flying, especially here close to the ridges. Okay? Good morning and welcome to the fourth day of the competition. So it's actually the third day. The first day was a ceremony and practice. Today is the third day of competing until the 8th. The 9th is the finishing ceremony, and so the 8th we'll have every single day. We have a new course. Today I believe they're adding an extra point. So basically it's a course in the sky. They have to go and there's like a radius that they have to enter, and then they go to a different point and they have to enter that. It's like a course in the sky that they have to go through. Anyway, so I believe they're adding an extra point today. So it's going to be a little bit harder. Anyway, so good luck to everyone and thank you for tuning in. मौसम के बदलते रुख के आगे किसी की न चली और पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का तीसरा टास्क खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। और मैं यहाँ पे ठीक है फ्लाइंग कर रहा हूँ अपना 11-12 साल से, और जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट करता हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पे हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि ये जो साइट है ये काफ़ी अच्छी साइट है। एशिया में तो ठीक है नंबर 1 साइट है ही ये, और अपना वर्ल्ड में भी ठीक है नंबर 2 साइट है। तो यहाँ पे ठीक है फ्लाइंग करना काफ़ी अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, सेफ्टी वाइज भी अच्छी साइट है ये काफ़ी ज़्यादा। बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के चौथे दिन खराब मौसम का प्रभाव देखने को मिला, जिसके चलते टास्क ब्रीफिंग में सबसे पहले देरी हुई, जिसके बाद पैराग्लाइडर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए इस पूरे मुकाबले को रद्द करना पड़ा। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के अलावा क्या कुछ खास है।
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। वैसे तो बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के नाम से विख्यात है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे आध्यात्मिक रंग है, कई ऐसे धार्मिक स्थल है जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे सत्यवादिनी माता की। माता सतबाधनी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलिंग जंगल के मध्य में स्थित है। मंदिर का मूल स्थान चना दर्रा है। एक स्थान पर 7 देवियों की उपस्थिति के कारण इसे माता सतबाधनी मंदिर कहा जाता है। जब भी पैराग्लाइडिंग का मौसम बंद होता है या शुरू होता है तो सभी पैराग्लाइडिंग पायलट हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर को विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोगों के समागम के लिए जाना जाता है। पवित्र मंदिर के दर्शन पहाड़ी वाले रास्ते द्वारा किया जाता है। कुछ परंपराओं का मानना है कि यह मंदिर शाश्वत ऊर्जा का निवास है। प्रथा अनुसार आरती मंदिर में हर दिन की जाती है। इस मंदिर के बारे में भारत के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हर साल आसपास के गांव और जंगलों से हजारों लोग माता सतबाधनी जी के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं।
जो ऐसा ये जो पैराग्लाइडिंग जो है ये पहले शुरू में हैंड ग्लाइडिंग यहाँ पे हुआ था। तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे। तो बीपीए ने ये जो बागडोर संभाला है ये मतलब 2013-14 से संभाला होगा। तो 2015 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो पिछले बार 2023 में यहाँ पे 2 बार मतलब मार्च और ये नवंबर 2 में प्री वर्ल्ड कप हुआ था। तो जो यहाँ से ऑफिस से हमें 3 लोग के लिए जो भी काम के लिए बोलते हैं हम तो मिलजुल के करता हूँ। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सांसद और एरो क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रताप रूडी ने मंगलवार को बिलिंग में चल रहे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का अवलोकन किया और प्रतिभागियों को आयोजकों के द्वारा दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। मंगलवार को लैंडिंग स्थल पर पहुंचे राजीव प्रताप रूडी ने प्रदेश सरकार और आयोजकों के द्वारा किए जा रहे प्रबंधों को भरपूर सराहा और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार के सहयोग से पिछले 1.5 साल में विश्व स्तर के 3 प्रतियोगिता आयोजित करके क्षेत्र का नाम रोशन किया। रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा साहसिक खेलों को विकसित करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार से मिलकर बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट और लैंडिंग स्थल पर चल रही खामियों को दूर करने के लिए केंद्र के द्वारा हर स्तर पर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के अध्यक्ष गोरेन के साथ बैठक की। उनके साथ बीड बिलिंग में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदस्य को कहा कि बीड बिलिंग के विकास के लिए विस्तार से तैयारी की जाएगी और इसे केंद्र सरकार तक भेजा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बढ़िया प्रयास और पिछले 2 दशक से बीड बिलिंग में दुनिया भर के सैलानी आते हैं और ये बड़ा आयोजन किया जाता है पैराग्लाइडिंग का। शायद इसकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है। तो आज निरीक्षण के तौर पर और क्योंकि मैं सांसद भी हूं और उसके साथ साथ भारत सरकार में पूर्व नागरिक विमानन मंत्री भी रहा हूं, कप्तान भी हूं और इस समय एरो क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी हूं। तो जो यहाँ अधिकारी हैं और जो व्यवस्था है, प्रारंभिक व्यवस्था होते हुए भी बहुत प्रयास करके आयोजकों ने तैयार किया है। इसमें विस्तार कैसे हो, सुरक्षा के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, इसे और सुदृढ़ कैसे किया जाए और बीड बिलिंग को दुनिया के नक्शे में सबसे नंबर 1 स्थान कैसे बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश का ये स्थान, उसके लिए अगले वर्ष कमेटी के साथ बैठ करके और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ करके दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में पैराग्लाइडिंग के रूप में विकसित है, उसे और विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा। करेंगे। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने राजीव प्रताप रूडी का यहां पहुंचने पर जमकर स्वागत किया और प्रतियोगिता के अवलोकन के लिए उनका हार्दिक आभार किया। और जिस जोश और उमंग के साथ जो प्रतिभागी आज की उड़ान के लिए निकले थे, उनके हाथ केवल निराशा लगी। हालांकि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की शुरुआती 2 दिन का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। तीसरे दिन के लिए भी सभी पैराग्लाइडर्स और स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई थी कि मुकाबला रोमांचक देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम की खराबी और पैराग्लाइडर की सेफ्टी को देखते हुए इस टास्क को रद्द करना पड़ा। आज पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 बीड बिलिंग का 4th डे था, जिसका कि टास्क 148 किलोमीटर्स ग्राउंड डिस्टेंस डिसाइड किया गया था टेक्निकल कमेटी के द्वारा और सभी पायलट्स का विंडो के टाइम शेड्यूल से टेक ऑफ किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही ड्यू टू लो और पुअर विजिबिलिटी इस टास्क को कैंसिल करना पड़ गया और सभी जो पायलट टेक ऑफ कर गए थे उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर करके और फ्री फ्लाइंग करके सेफली लैंड कर लिया और टास्क कैंसिल किया गया।
बीड बिलिंग MTB XCO चैंपियनशिप का आगाज BPA के सौजन्य से बीड बिलिंग में होने जा रहा है 9 तारीख को। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस चैंपियनशिप के डायरेक्टर नमन विज जी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो इस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है, शुरुआत इसी से करते हैं। मेरा नाम नमन है और मैं यहाँ बीड से बिलोंग करता हूँ। मैं माउंटेन बाइकर हूँ और मैंने एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके साथ ही जैसे कि चैंपियनशिप का आगाज जो है 9 तारीख को होने वाला है, और क्या कुछ चुनौतियां रही है, किस तरह से तैयारियां किस तरह से की चैंपियनशिप की, आपने कितनी टीमें आपके साथ इस दौरान रही? मेरे साथ मेरी 5 मेंबर्स थे और हमने ये सारे ऑब्स्टेकल्स जैसे ये डिज़ाइन करे हैं और काफ़ी ज़्यादा पूरा XCO का जो फॉर्मेट है हमने वो बनाया हुआ है सारा क्रॉस कंट्री ओलंपिक का। कितने पार्टिसिपेंट इसमें रहने वाले हैं? इसमें 40 to 50 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। तो कहाँ से हैं ये? इंडिया से हैं या फिर फॉरेनर भी इसमें ऐड होंगे? इसमें ओवरऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो पार्टिसिपेंट होंगे चैंपियनशिप में यहाँ पर भाग लेंगे, जिसके बाद अगर कोई यहाँ पर विनर रहेगा तो क्या कुछ प्राइज उनके लिए विशेष रखे गए आपकी तरफ से? इसमें टॉप 5 प्राइज मनी होएगा 25,000, 20,000, 15, 10, 5 और इसमें एक विशेष कैटेगरी है अंडर 19। वो हमने यूथ बॉयज को ग्रो करने के, माउंटेन बाइकिंग ग्रो करने के लिए अंडर 19 एक कैटेगरी रखी हुई है। क्या ये चैंपियनशिप बीड बिलिंग में पहली बार हो रही है? ये इससे पहले भी ये चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन किया गया है? इससे पहले एक 2018 में हुई थी, वो हमने वेगा स्पोर्ट्स के नाम से करवाई थी और अब ये सेकंड टाइम बीड में MTB का कंपटीशन होने जा रहा है। जो आपने यहाँ पर तैयारियां की, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक ट्रैक बनाया गया है। कितना टाइम इस ट्रैक को बनाने में लगा? इसे 15 डेज लगे ट्रैक पूरा रेडी करने के लिए। तो इसमें जो आपने यहाँ पर तैयारियां की है, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद आपको इसमें मिली है? जी, इसमें हिमाचल टूरिज्म का सपोर्ट है, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का भी सपोर्ट है और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिंद साइकिलिंग का भी सपोर्ट है। चलिए, तो आप 9 तारीख को ये चैंपियनशिप होने वाली है, तो जैसे कि आप खुद युवा है, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, तो क्या संदेश देना? बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के पहले 2 दिन काफ़ी रोमांचक रहे, लेकिन आज का दिन खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन और ज़्यादा रोमांचक मुकाबले के साथ देखने को मिले। आज के भाग में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए भाग के साथ। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट।